So what we saw last time was that uh, how our code is structured, right? So let us just reiterate how our code is structured. So code is structured in this form, right? Like we have our project, second project. Inside that we have a directory called as src or a folder called as src. Src generally it stands for source code. Inside src there is another folder called as app, right? As I said that uh, maximum things that you would be doing, 99.9% of the things or coding which you would be doing, you would be doing it inside this app folder. Why is that? Because app is a root folder. You can say that it is a root folder or the base folder of your components or your modules, right? So app folder, it contains a file called as app.module.ts, which internally which in turn contains a class called as app module, right? So what is a module? You can say it is used to group the components together, right? As of now you can remember this definition for a module, that module is something which would group the components together, right? So inside a module, right, we have components, right? What are components? Again, component is a building block, basic building block of Angular, right? So an Angular project is made up of small components or a combination of various components, right? Now what we did is, like, by default we have an app component which we get whenever we create a new Angular project. Then what else have we done? We have created two more components or generated two more components. How did we generate those components? We said ng generate component and name of the component. So first component was home and second component was about us, right? So what happened after we generated, when we generated the home component, a folder called as home was created inside this app folder. Inside this, right, what we have is 3 to 4 files, out of which one file is of not much use or significance, but other three files, one is home.component.ts, home.component.html and home.component.css, right? Inside home.component.ts what we have is a class for that component, right, which has two functions, one is constructor and one is ng-on in it, right? And there is one @component decorator. What does this do? This decorator, it has three important keys, right? First one is selector. Now what is selector? Selector is something which we would be using as an element to display the view of the component. So what we have done is, in our app.component.html, when we used this app-home as an HTML element, we were able to see the contents of this home component. Then template URL is a path to which HTML file would be used, and style URL is a path to which CSS file would be used, right? So nothing much in here. Rest all the binding, data binding and all the things would be same in this component, right? No rocket science. जैसा हमने ऐप में किया था वैसा ही आप होम में सब कर सकते हो. In the same way, for about us component, again we have 3-4 files generated and same thing in it, right? Again nothing, no rocket science. Then we went to our app.component.html file, right? And in that file, what we did is we use this app-home as a selector element or as an HTML element, and what we get is, we can see its contents displayed here. So we get this home component demo here, and I guess I also used about us component inside the home component, its selector in the home component, so I was able to view the details of about us component as well, right? Now essentially what we have seen is, like, we are able to get the contents of all the components in a single page, right? We can use one component, selector of one component inside another component, and likewise to display the contents in a page. Now let us see that for a different path, how can we get different uh, contents of different components.
राइट. नाउ दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज राउटिंग. राउटिंग मतलब क्या कि राउटिंग मतलब कि आपका ये यूआरएल में जो पाथ है ये पाथ चेंज होगा, और ये पाथ चेंज होगा मतलब हर अलग पाथ पे एक अलग पेज दिखेगा, ये उसका मतलब है. ऐसा मान के चलो, डिफरेंट पाथ विल शो यू अ डिफरेंट पेज और कैन शो यू अ डिफरेंट पेज. हमने इसमें देखा था नोड जेएस में, एपीआई में हमने पाथ देखे थे, तो उनमें क्या था, अलग पाथ अलग ये दिखाता था. राइट, डिफरेंट पाथ यूज टू कॉल अ डिफरेंट एपीआई. राइट, तो यहाँ पे भी यूआई में भी हम लोग वैसा करने वाले कि अलग पाथ विल शो अ अलग an alag page. Right, that is what we are going to do. Right, now let us take a look at it. The very first thing which we would do is we'll go into app.module.ts. Inside app.module.ts, this time what I am going to do is I am going to import router module. So I'll say import router module comma routes from @angular / router. This is the first thing which I am going to do. Next, what I am going to do is I am going to declare a variable, say var routes colon routes, means this is an object of this routes class which we have implemented. राइट, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए राउट्स का. राइट, नाउ इट इज़ एन एरे एंड इट इज़ एन एरे ऑफ जेसन. Right, now in this what I would do is, right, I'll give different paths. Right, so very first path which I am going to give is, right, I'll say path is home and second key is component which would be home component. I'll tell you ये सब चीज़ें क्या है. Right, then I give a comma, right, and I add another path. Right, another path would be for your about us component. So I'll say path is about us and component is about us component. Right, ये दो पाथ मैंने बना दिए. राइट, मैंने इसको सेव किया एंड आफ्टर दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि ये जो पाथ, इसका मतलब क्या है कि ये पाथ पे ये कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, ये पाथ पे ये कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, ये उसका मतलब है. राइट, विल कम टू दैट. एंड थर्ड थिंग इज इन आर इम्पोर्ट्स एरे, हम जब भी कोई मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं वी यूज इट इन द इम्पोर्ट्स एरे. सो आई वुड से राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट and I'll pass this variable routes which we have created. We have created a variable here जिसमें हमने paths डाले और वो paths को आप यहाँ register कर रहे हो. So I would simply say router module dot for root routes. Right, this is the first thing which we would do here. Right, let us see if this makes any change. No, it is not making any change. वैसे का वैसा दिख रहा है. Then let us see if I give the path as /home. राइट, ये वो पाथ है जो हमने वहाँ डिक्लेयर किया है. राइट, तो /home किया, फिर भी वो पाथ जो है वापस होम ही आया और यहाँ पर वैसे का वैसा जो भी आपके app.component.html में है वैसे का वैसा डिस्प्ले हो गया. राइट, द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डू इज आई विल गो टू app.component.html. राइट, एंड आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम दिस. ठीक है, मैंने इसमें से सब हटा दिया. तब यहाँ पर ब्लैंक आ गया. राइट, यहाँ मैं होम पाथ पे हूँ चाहे मैं अबाउट अस पे हूँ, नथिंग इज हियर. राइट, इट इज स्टिल ब्लैंक. राइट, सो द थर्ड important step which we need to do is in our app.component.html we need to give an element router dash outlet. router dash outlet. राइट, ये एक सिलेक्टर या ये एक एलिमेंट हमने यहाँ पर डालना है. आफ्टर दैट इफ़ यू कैन सी ये अबाउट अस पाथ है, तो अबाउट अस में हमने वो मूवीज़ को डिस्प्ले करवाया था, तो ये अबाउट अस के कंटेंट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं. व्हेन माय यूआरएल इज अबाउट अस, राइट, एंड इफ आई रिमूव इट एंड इफ आई गिव होम, तो
ये होम के कंटेंट्स हमको दिख रहे हैं. होम में क्या है? इफ़ यू लुक एट होम, गो टू home.component.html. इसमें मैंने अबाउट अस भी यूज़ किया, मैं ये हटा देता हूँ. तो व्हाट आई शुड सी इज होम कंपोनेंट डेमो एंड आई एम होम कंपोनेंट. एंड अबाउट अस में आपको क्या दिखेगा? ये एक मूवीज़ जो है सिर्फ मूवीज़ दिखेगी. सो इफ़ यू लुक एट होम, अब मुझे क्या दिख रहा है? एक होम कंपोनेंट डेमो और आई एम होम कंपोनेंट. ये कहाँ दिख रहा है? जैसे आप पाथ चेंज कर रहे हो उस पर आपको दिख रहा है. और यहाँ पर इफ़ आई गिव अबाउट अस, राइट, तो मुझे सिर्फ मूवीज़ जो है वो दिखे. मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो URL का पाथ है, URL के पाथ पे, अलग अलग पाथ पे अलग अलग कंपोनेंट के कंटेंट्स को आप डिस्प्ले करवा सकते हो. राइट, दैट इज व्हाट इज राउटिंग. अलग अलग पाथ पे अलग अलग कंपोनेंट्स के कंटेंट्स को आप डिस्प्ले करवा सकते हो. कौन से पाथ पे कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, राइट, नाउ यू कैन कंट्रोल दैट. दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ राउटिंग. राइट, तो इमेजिन दिस कि ये पेज जैसा है, पेज के जैसा है. राइट, नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल हैव टू बटन्स हियर. राइट, वन इज होम, वन इज अबाउट अस. होम बटन पे क्लिक करने पे होम कंपोनेंट के कंटेंट्स डिस्प्ले होने चाहिए. एंड अबाउट अस पे क्लिक करने पे अबाउट अस के कंटेंट जो है वो डिस्प्ले होने चाहिए. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू app.component.html. राइट, एंड बिफोर दिस राउटर आउटलेट I'll use two buttons. One is home and another button, it is about us. अभी मैंने सिर्फ बटन बनाया और कुछ नहीं हुआ. Now if you see कि ये home और about us जो है ये हमेशा आपको ऊपर दिखेंगे irrespective of which path you are on. तो आप about us पे हो तो भी दिख रहा है, होम पे जाओगे तो भी दिखेगा. राइट, व्हाट इट मीन्स इज कि ये app.component.html में आप जो भी लिखोगे वो वैसे का वैसा दिखेगा. राइट, लेकिन ये जो आपका राउटर आउटलेट है, ये राउटर आउटलेट का एलिमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय द एलिमेंट ऑफ योर सिलेक्टर. अगर होम पाथ है तो होम का सिलेक्टर दिखेगा, यानी होम के कंटेंट्स दिखेंगे. और अगर अबाउट अस पाथ है तो अबाउट अस के कंटेंट्स दिखेंगे. नेक्स्ट व्हाट आई नीड टू डू इज कि ये बटन क्लिक पे, ऑन द क्लिक ऑफ दिस बटन, राइट, इट शुड शो, यानी ऑन द क्लिक ऑफ होम बटन इट शुड शो होम कंपोनेंट के कंटेंट्स, एंड ऑन क्लिक ऑफ अबाउट अस इट शुड शो अबाउट अस के कंटेंट्स. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज एन एट्रीब्यूट राउटर लिंक equals to, and I'll give slash home. So this is the path of home, and in this, in about us, I would say router link equals to slash about us. I'll save this. Okay, now if I click on about us, I come to about us. If I click on home, I come to home. I come to about us, I get about us. Home, I get home. So एक कोई वेबसाइट अगर तुमने देखी होगी, राइट, तो वेबसाइट में कैसे ये ऐसे होता है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, फलाना डिमका, वो बहुत अलग अलग ही होते हैं, कॉन्टैक्ट अस, राइट. तो दिस इज सम इन सम वे एनालॉगस टू दैट, कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट बटन और व्हाट लिंक यू क्लिक, राइट, तुम्हें उसका करस्पॉन्डिंग पेज जो है वो दिखता है. It is in some way or another it is analogous to that. Right. Next is, यहाँ तक is it clear? Any questions यहाँ तक? क्या किया है ये समझ में आया ना, यानी करने की क्या कोशिश है? Yes sir. ठीक है, यानी अलग लिंक पे, अलग राउट पे, अलग पाथ अपन दिखाने वाले. राइट, सर वहाँ बटन्स की जगह पे लिंक्स वगैरह अगर डायरेक्ट लिंक्स बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा. यानी आप ये बटन के बदले अगर ए टैग यूज कर रहे हो, है ना, तो भी कोई हरकत नहीं.
है ना। तो ये राउटर लिंक कोई भी एलिमेंट पे चल जाएगा, Yes. है ना, कोई इशू नहीं है। हाँ पूछो, और भी कोई पूछ रहा था कुछ। नहीं सर, हो गया। हाँ ठीक है, ओके राइट। अब what we have seen till now is कि we have a module, right, and we have components, and जो भी component create हुआ it is always a part of some module, क्योंकि अगर वो module का part नहीं होगा तो उस component को आप use ही नहीं कर सकते हो। Then what we have seen is कि हमने उस module में कुछ routes define किए, right, और हर राउट के बेसिस पे हमने कोई ना कोई कंपोनेंट कॉल करवाया, राइट। अब एक चीज़ और देखते हैं कि लेटेस्ट से मैं राउट में लोकल होस्ट 4200 सिर्फ इतना ही रखता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे ना तो होम के कंटेंट्स दिखे, ना ही मुझे अबाउट अस के दिखे। मुझे क्या दिखा, सिर्फ होम और अबाउट अस, जो भी ऐप कंपोनेंट में हमने लिखा है सिर्फ वही दिखा। अभी पाथ में कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि ब्लैंक पेज नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ लिंक्स दिखनी नहीं चाहिए। तो हमने क्या करना है, एक डिफ़ॉल्ट पाथ भी सेट करना है कि अगर पाथ ब्लैंक है तो आप होम पे चले जाओ, राइट। सो हाउ विल आई डू दैट? टू डू दैट आई विल सिंपली ऐड अनदर पाथ टू इट। आई विल से पाथ ब्लैंक, देन redirect to, right, I'll say home, यानी home पे चले जाओ, right, and third is path match, I'll say full। let us see वो होता है क्या, right। अब अगर आप देखोगे कि मैं अगर ये home हटा देता हूँ तो by default फिर भी वो home पे आया। मतलब क्या कि अगर पाथ ब्लैंक है तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल कम टू होम कंपोनेंट। अगर इंस्टेड ऑफ होम मुझे अबाउट अस दिखाना है सबसे पहले, तो इंस्टेड ऑफ होम आई विल गिव इट अबाउट अस हियर, यानी रिडायरेक्टेड टू अबाउट अस। नाउ इफ आई रिमूव दिस होम, तो अब ये अपने आप अबाउट अस पे आया। बाद में आप फिर इसको चेंज कर सकते हो, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ये तरीके से एक राउट दे सकते हो कि डिफ़ॉल्ट ये कंपोनेंट पे आएगा। मैं वापस इट विल चेंज इट टू होम। ठीक है। नेक्स्ट इज कि अब हमने ये राउट्स डिफाइन किए, राउट्स को हमने रजिस्टर कर दिया है राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट से। नाउ अब हमने अभी तक क्या किया, हमने अपने खुद के कंपोनेंट्स बनाए, दो ही कंपोनेंट्स बनाए, एक होम बनाया, एक अबाउट अस बनाया, राइट। और ये दोनों कंपोनेंट्स हमने कहाँ बनाए, तो हमने ऐप मॉड्यूल के अंदर ही बनाए, राइट। क्यों? बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट एवरी कंपोनेंट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ सम मॉड्यूल, राइट। और अगर आपका दूसरा कोई मॉड्यूल नहीं है तो हर कंपोनेंट जो है वो ऐप मॉड्यूल का ही पार्ट बनेगा। Now what we are going to do is we are going to create a new module or generate a new module, and inside that module we are going to generate few components, right। Now let us check that out। हाँ, मैं सेकेंड प्रोजेक्ट में हूँ। सो टू जनरेट what I'll do is I'll say ng generate module, right, and I can call it, let's say, admin या टेस्ट नाम दे देता हूँ, टेस्ट। तो ये क्या करेगा, ये ऐप फोल्डर के अंदर एक टेस्ट नाम का फोल्डर बनाएगा, राइट। और उस टेस्ट में देयर वुड बी अ test.module.ts फाइल, और जिसके अंदर एक क्लास होगा टेस्ट मॉड्यूल नाम का।
ठीक है, तो ये एक टेस्ट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस एक फाइल बन गई SRC में, ऐप में टेस्ट फोल्डर के अंदर, राइट। नाउ लेट अस ओपन दैट फाइल। ये देखो, ये टेस्ट में टेस्ट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, उसमें अगेन एक क्लास बना टेस्ट मॉड्यूल, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस मॉड्यूल में, राइट, कुछ कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो वो करने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल गो इनटू CD SRC, देन CD वो ऐप में टेस्ट, राइट। तो ये PWD करने पे मुझे मिल रहा है, तो मैं अभी टेस्ट फोल्डर के अंदर हूँ, राइट। तो जो भी मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में अब अगर मुझे कोई जनरेट करना है कंपोनेंट, लेट अस से होम नाम का ही कंपोनेंट जनरेट करना है, तो हाउ विल आई डू दैट? आई विल से ng जनरेट कंपोनेंट एंड आई विल कॉल इट होम, राइट। अब ये जो होम कंपोनेंट है ये टेस्ट मॉड्यूल का पार्ट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये वही कंपोनेंट नहीं है, राइट। दूसरे कंपोनेंट, दूसरे मॉड्यूल का पार्ट है। अब ये क्या करेगा, होम फोल्डर, सॉरी टेस्ट जो फोल्डर है उसके अंदर में वो एक होम नाम का फोल्डर बनाएगा। ये देखो, ये जो होम था ये अपना ऐप के अंदर का होम था, अब ये जो है ये टेस्ट के अंदर का होम है, राइट। देयर इज अ डिफरेंस। नेक्स्ट इज कि ये जो टेस्ट मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में भी आपको इसके कंपोनेंट्स के लिए राउट्स देने, तो एक मैंने होम बनाया और एक कुछ तो कंपोनेंट बना देता हूँ वहीं पे, लेट मी कॉल इट से कॉन्टैक्टस। ये दोनों टेस्ट मॉड्यूल के पार्ट है। अगर आपने ये देखा होगा कि यहाँ डिक्लेरेशंस में आपको होम कंपोनेंट मिला, ये कहाँ पर है? टेस्ट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में है। तो मतलब क्या है कि दिस होम कंपोनेंट, राइट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेस्ट मॉड्यूल एंड नॉट अ पार्ट ऑफ ऐप मॉड्यूल। राइट, सो अगेन ये दूसरा कंपोनेंट भी इधर आ गया। अब नाउ नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू जनरेट राउट्स फॉर द सेम। अब ये जो राउट्स है ये टेस्ट मॉड्यूल के राउट्स है, राइट, ये ऐप मॉड्यूल के राउट्स नहीं है। तो वो मैं कैसे करूँगा? आई विल से इंपोर्ट अगेन राउटर मॉड्यूल कॉमा राउट्स फ्रॉम @angular/router, same thing. Then next is I'll say where routes colon routes equals to एक blank array पहले, फिर इसके अंदर हम लोग path बनाएंगे। तो path I'll say home and component would be home component, right. Next is path, I would say contact us, component I would say contact us component. Third is path default, यानी blank path, then redirect to, I would say redirect to home, and third is path match and I would say full. ये बना routes
Next is, what I would do is, in my imports, I would say router module dot for child. Instead of for root, we'll use for child. तो जब भी आप कोई यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स, यूज़र डिफाइंड यानी जो आपने क्रिएट किए हुए अदर देन ऐप मॉड्यूल, उसमें जब आप राउट्स यूज़ करते हो तो यूज़ फॉर चाइल्ड इंस्टेड ऑफ फॉर रूट। ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में हमने फॉर रूट यूज़ किया था। फॉर रूट एक ही बार यूज़ होगा, फॉर चाइल्ड जो है वो बाकी इसके लिए यूज़ होगा। बाकी हर मॉड्यूल में आप फॉर चाइल्ड दे सकते हो। एंड आई विल पास द ऑब्जेक्ट ऑफ राउट्स, राइट। तो ये मॉड्यूल बन गया है, ये मॉड्यूल के राउट्स भी बन गए, राइट। लेकिन क्या नहीं बना, दो चीज़ें। एक कि आपका जो मेन फंक्शनैलिटी है यानी मेन मॉड्यूल है विच इज़ रूट मॉड्यूल विच इज़ ऐप मॉड्यूल, उसमें कहीं भी आपने ये टेस्ट मॉड्यूल को अटैच नहीं किया, राइट। तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आएगा, नथिंग वुड चेंज हियर। वो चेंज करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको टेस्ट मॉड्यूल को अटैच करना पड़ेगा। तो टू अटैच दैट व्हाट यू वुड डू इज यू विल क्रिएट अनदर राउट, you will say path, will say test, right, and then I will say load children, and against this, right, there will be a callback function। ये क्या है अभी के लिए सिंटैक्स पे मत जाओ, पर इन अ वे दिस इज अ कॉलबैक फंक्शन। इसमें हम लोग वो मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। राइट, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिटर्निंग कि ये टेस्ट जो है पाथ, ये टेस्ट पाथ पे ये वाले मॉड्यूल के राउट्स कॉल होंगे। ये जो टेस्ट पाथ है इस पे ये टेस्ट मॉड्यूल के राउट्स जो है वो यूज होंगे। मतलब क्या कि लोकल होस्ट :4200/टेस्ट अगर आप दोगे तो /टेस्ट में उसका जो डिफ़ॉल्ट है मतलब होम ये वाला दिखेगा, तो /टेस्ट/होम के कंटेंट जो है वो दिखेंगे। लेट अस चेक देम आउट वंस। राइट, तो यहाँ क्या लिख के आया, यहाँ होम वर्क्स लिख के आया, और यहाँ अगर आप दिखोगे तो ये पाथ क्या बना, टेस्ट/होम। राइट, वही टेस्ट/कॉन्टैक्टस करता हूँ मैं, तो कॉन्टैक्टस जो है उसका कंटेंट जो है वो डिस्प्ले होगा। लेट अस चेक, विल गो टू टेस्ट के होम कंपोनेंट डॉट HTML में मैं क्या यहाँ पर I'll just write I am test module home component, right, and test के ही contact us में गया, उसके HTML में मैंने लिखा I am test module contact us component, राइट। तो ये कहाँ आया, आई एम टेस्ट मॉड्यूल कॉन्टैक्टस कंपोनेंट। इसका पाथ कैसे डिफाइन हुआ, ये कॉन्टैक्टस जो पाथ है ये जो हमने टेस्ट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में दिया वो पाथ है। ये जो टेस्ट पाथ है ये हमने कहाँ से दिया, ये हमने ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में दिया। तो हमने क्या किया, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में हमने टेस्ट नाम के पाथ को ये टेस्ट मॉड्यूल के राउट्स के साथ में अटैच किया। वो अटैच करने का सिंटैक्स क्या है, यूजिंग लोड चिल्ड्रन, यूजिंग लोड चिल्ड्रन। तो ये पाथ के अगेंस्ट इसके चिल्ड्रन को लोड करो। चिल्ड्रन को लोड करो मतलब जो भी चाइल्ड राउट्स है वो लेके आओ। चाइल्ड राउट्स कैसे मिलेंगे, टेस्ट मॉड्यूल जो है ये तो फाइल है, टेस्ट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस जो फाइल है, तो हमने इंपोर्ट किया वो फाइल को, और ये डॉट देन जो है अभी के लिए छोड़ दो क्या है, लेकिन ये कॉल बैक फंक्शन है।
राइट और ये क्या करता है कॉल बैक फंक्शन एम डॉट टेस्ट मॉड्यूल रिटर्न करता है. ये टेस्ट मॉड्यूल क्या है क्लास का नाम. तो उस क्लास के राउट्स को वो रिटर्न कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा. राइट सिंटैक्स ही सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. एट द एंड व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज जस्ट रिटर्निंग यू द राउट्स ऑफ दैट क्लास. तो टेस्ट के अगेंस्ट यानी लोकल होस्ट 4200/test/home करोगे तो टेस्ट मॉड्यूल का होम कंपोनेंट डिस्प्ले होगा. /test/contact us करोगे तो contact us डिस्प्ले होगा. कौन से मॉड्यूल का टेस्ट मॉड्यूल का. राइट सो दिस इज व्हाट इज सर राउटिंग. ये